A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's This Day in History lecture. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं. Along with this, we will also share some very crucial practice questions with you towards the end of today's lecture. क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आज के फैक्ट्स पे आधारित हैं, आप अवश्य ही इनके आंसर्स देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट. तो आइए अब शुरू करते हैं 9 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी आवश्यक फैक्ट्स की. The very first fact of today is associated with 1856 when famous inventor Nikola Tesla was born. अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध आविष्कारक निकोल टेस्ला का जन्म हुआ था. निकोल टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे. He is famous for his contributions to the design of modern alternating current, that is AC, electricity supply system. He had done several works in electric light, electric motors, radio, X-ray, remote control, radar, wireless communications and robotics. He also created his famous transformer, जिसे बुलाया जाता है टेस्ला कॉइल. वर्ष 1901 में उन्होंने स्मार्टफोन की तकनीक के लिए विचार विकसित किया और उन्होंने आविष्कार और प्रयोग करने के लिए कोलोराडो में अपनी प्रयोगशाला स्थापित करी थी. He experimented with shadow graphs similar to those that were later to be used by Wilhelm Röntgen when he discovered the X-rays in 1895. In 1898, he demonstrated a boat that used a coherer-based radio control, which he dubbed as teleautomation. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था his steam-powered reciprocating electricity generator at the International Electrical Congress. In 1928, he received US patent for a biplane that was capable of taking off vertically. अगर बात करें उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबों की, सो द नेम्स आर द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एनर्जी, एक्स-रे विजन एंड द ट्रू वायरलेस. इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स में एक ये भी है दैट द IEEE निकोला टेस्ला अवार्ड is a technical field award given annually to individual or teams who have made an outstanding contribution to the generation or utilization of electric power. और अब आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है संबंधित 1875 से when the Bombay Stock Exchange was founded, अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी. The Bombay Stock Exchange was founded on 9th July 1875 at a street that was renamed Dalal Street in Bombay. The Bombay Stock Exchange और BSE भारत का सबसे बड़ा और अर्लीस्ट सिक्योरिटी मार्केट है. इट इज ऑल्सो एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज. वर्ष 1875 में एमिनेंट बिजनेसमैन प्रेमचंद रॉयचंद officially founded the Native Share and Stock Brokers Association that was later renamed as Bombay Stock Exchange. With the market capitalization of over 2.3 trillion US dollar, currently it is world's 10th largest stock exchange और यह विश्व का फास्टेस्ट एक्सचेंज है with a median trade speed of 6 microseconds. ये बना था भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज to be recognized by SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. In 1995, BSE switched from open outcry trading to an electronic system of trading. और इसने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव वर्ष 2012 में. 2017 में BSE issued shares to the public and is traded on the National Stock Exchange. ये एक्सचेंज also operate करता है a capital market educational institute which is known as BSE Institute Limited.
और अब आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये है संबंधित 1979 से, when Indian mountaineer चंदा गायन was born, अर्थात भारतीय पर्वतारोही चंदा गायन का जन्म हुआ था। She was a Bengali mountaineer, martial artist, explorer and teacher of self-defense. She is best known for being the first woman from India to climb the summit of Mount Everest on 18 May 2013 and the Mount Lhotse during the same expedition. वर्ष 2014 में she went missing along with two other people in an avalanche, जो कि एक snowstorm होता है, while she was descending the western side of Mount Kanchenjunga in Nepal. और उन्हें प्रदान किया गया था सेरा आविष्कार पुरस्कार in 2013 from ABP Ananda. यहां इस संदर्भ में ये तो हम जानते ही होंगे, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जनको तबाई, who was the first woman to reach the summit of Mount Everest in 1975, and she was also the first woman to have ascended the 7 summits, which means climbing the highest peak on every continent. और ये भी अवश्य याद रखिएगा कि बछेंद्री पाल जो भारत की पर्वतारोही हैं, उन्होंने 1984 में नाम कमाया था when she became the first Indian woman to have reached the summit of Mount Everest. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट हमारा, जो है संबंधित 2002 अर्थात वर्ष 2002 के साथ, when the African Union was established in South Africa, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी संघ AU की स्थापना करी गई थी। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित 55 राज्य शामिल हैं। It was announced in the Sirte Declaration in Libya on 9 September 1999. It was launched as a successor to the previous organization called Organization of African Unity OAU in 2002 in Durban. The most important decisions of the African Union are taken by Assembly of the African Union, जो कि एक सेमी एनुअल मीटिंग करने वाला फोरम है ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। एयू के सेक्रेटेरिएट की अगर बात करें, सो दैट इज द अफ्रीकन यूनियन कमीशन एंड दिस इज बेस्ड इन एडिस अबाबा। एडिस अबाबा का नाम आपने सुना होगा फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। अगर बात करें कौन से हैं मेन ऑर्गन्स या मेन ऑफिशियल बॉडीज ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नाम है पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट PAP, अफ्रीकन यूनियन कमीशन और अथॉरिटी, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ अफ्रीकन यूनियन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कमिटी, एज वेल एज अ पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल PSC। इसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल काउंसिल भी इसमें शामिल है, एंड देन देयर आर सेवरल अदर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल कमिटीज। यहाँ एक फैक्ट और भी बहुत आवश्यक है, जो है संबंधित 2020 वर्ष से, जब AU की समिट हुई थी और इसमें हिस्टोरिक स्टेप लिया गया था, under which the African Continental Free Trade Agreement AFCFTA came into being। और अगर बात करें वर्तमान वर्ष की, तो ये भी याद रखिएगा कि 2021 में in the month of February, 34th African Union Summit was held virtually, that was organized by the African Union Commission, और इसकी थीम थी आर्ट्स, कल्चर एंड हेरिटेज, लीवर्स फॉर बिल्डिंग अफ्रीका वी वांट। और यहाँ इस संदर्भ में ये भी याद रखिए कि एजेंडा 2063 is Africa's blueprint and master plan for transforming Africa into a global powerhouse of the future। और अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ट्रू वायरलेस, अर्थात द ट्रू वायरलेस नामक पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस हैं ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी निकोला टेस्ला, सी आइजैक न्यूटन, और इज इट डी थॉमस अल्वा एडिसन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फाउंड, अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब करी गई थी। ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं, जो है ए 1872, बी 1873,
C 1875 or was it D 1876? और आज का तीसरा प्रश्न है which is the first stock exchange in Asia? अर्थात एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, सी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और इज इट डी बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज? With this, the fourth question is who was the first woman to ascend the seven summits, climbing the highest peak on every continent? अर्थात हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने वाली, 7 शिखर पर पहुंचने वाली महिला का नाम क्या है? ऑप्शंस है ए बछेंद्री पाल, बी जनको तबाई, सी फैंटोंग और इज इट डी बापसी जैंगरल? आज का पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एयू? अर्थात अफ्रीकी संघ एयू का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था? ऑप्शंस है ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, बी अफ्रीकन इकोनॉमिक यूनियन, C. Organization of African Unity or was it the Economic Community of African States? With this, आज का छठा और आखिरी क्वेश्चन है when was the African Union AU established? अर्थात अफ्रीकी संघ AU की स्थापना किस वर्ष में करी गई? ऑप्शंस हैं A 2000, B 2001, C 2002 और is it D 2003? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी लगातार शेयर करते रहिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, प्लीज स्टे सेफ एंड many thanks to all of you.